دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ سندھ کی افسر شاہی نے لاپرواہی کی انتہا کر دی۔ سندھ حکومت کا مرکزی شکایتی سیل 3.5 سال بعد بھی فعال نہ ہو سکا۔ 3 چیف سیکرٹری تبدیل ہو گئے، چوتھے نے بھی سیل کو فعال نہ کیا۔ افسر شاہی نے سابق چیف سیکرٹری کے فیصلے پر پانی پھیر دیا۔ شکایتی باکسز کے تالے تک نہ کھولے گئے۔ شکایتی سیل کے سربراہ کے تبادلے کے بعد نیا سربراہ تعینات نہ ہو سکا۔ سندھ سیکریٹریٹ کے 5ویں فلور پر شکایتی ڈیسک بھی ختم۔ تفصیلات آزاد نوہریو کی رپورٹ میں۔ کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ سندھ کے افسر شاہی نے لاپرواہی کی انتہا کر دی۔ سابق چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ نے عوامی شکایت کے ازالے کے لیے چیف سیکرٹری سیکریٹریٹ میں شکایتی سیل 2020 میں قائم کیا۔ 18 گریڈ کے افسر امیر افضل عباسی کی سربراہی میں بنے شکایتی سیل کو ڈیجیٹلائز کرنا تھا، اس کی ایپ بھی بنائی جانی تھی۔ افسر شاہی نے سابق چیف سیکرٹری سندھ کے فیصلے پر پانی پھیر دیا۔ افسران کے خلاف شکایت کے ازالے کے لیے چیف سیکرٹری سیکریٹریٹ سندھ سیکریٹریٹ کے مرکزی دروازے اور نیو سندھ سیکریٹریٹ کے 5ویں فلور پر شکایتی باکس لگائے گئے۔ 3.5 برسوں میں ان شکایتی باکسز کے تالے کھول کر چیک بھی نہیں کیا گیا۔ نیو سندھ سیکریٹریٹ کے 5ویں فلور پر عوامی شکایتی ڈیسک بنائی گئی تھی، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ شکایتی ڈیسک کی نگرانی کی ذمہ داری محکمہ عمل درآمد نے ہی اس پر عمل نہ کیا۔ نئے چیف سیکرٹری سید آصف حیدر شاہ بھی تاحال سیل کو فعال بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکے ہیں۔ افسران سے تنگ سائلین کہتے ہیں کہ کوئی بتائے وہ اپنا مسئلہ لے کر کہاں جائیں۔ آزاد نوہریو، سٹی 21۔ سرکاری اسپتالوں کا برا حال، ادویات بن گئی مفت کا مال۔ ڈاکٹر رتفاؤ سول اسپتال میں ادویات میں خرد برد، 2 ملازمین نے مبینہ طور پر 36 کروڑ روپے کی ادویات فروخت کی۔ ملازمین معطل، مقدمہ درج۔ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری بولے کسی قسم کی کرپشن برداشت نہیں کریں گے۔ تفصیلات ابراہیم رند کی اس رپورٹ میں۔ سرکاری اسپتالوں کا برا حال، ادویات بن گئی مفت کا مال۔ سندھ کے سب سے بڑے سول اسپتال میں بڑی کرپشن سامنے آ گئی۔ 36 کروڑ روپے کی کینسر سمیت دیگر ادویات چوری کر لی گئی۔ کئی ماہ تک تحقیقات جاری رہیں، جس کے بعد 2 ملازمین کے خلاف کرپشن کے ثبوت مل گئے۔ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری نے دونوں ملازمین کو معطل کر کے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کرا دیا۔ پچھلے اس کا اکتوبر کا واقعہ ہے، اکتوبر سے لے کر یہ جو ہے پچھلے اس میں ہوئی ہیں چیزیں۔ جب میں آیا تھا، جوائن کیا تھا، اس سے پہلے چیزیں ہو چکی تھی، لیکن میں نے سب چیک کی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میڈیسن شارٹ ہے، پیشنٹ کو نہیں مل رہی تھی، تو پھر میں نے کچھ چیزیں نکالی، انکوائری کی، تو اس میں پتہ چلا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو انڈینٹ ہو گئے ہیں، وارڈ میں گئے ہیں، وارڈ سے ریسیو نہیں ہوئے، ساری چیزیں پراپر ہوئی، جو ہے ایک پری پلان طریقے سے چیزیں ہوئیں۔ اوپر سے ہی جو ہے ان کو سسپینشن آرڈر جو ہے ان کے وہ ہوئے گئے دونوں کے، اور اس کے بعد پھر ان کو ان کی ایف آئی آر کے لیے میڈم نے مجھے لیٹر لکھا کہ آپ ان کو ایف آئی آر کروائیں کی۔ سول اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری نے کہا کہ کرپشن کرنے والے افراد کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، مزید کرپشن کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب دونوں ملازمین کی معطلی اور مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے اسپتال میں ہلچل مچ گئی ہے۔ کراچی کے بڑی سرکاری اسپتال سول اسپتال میں اسٹریچر نایاب ہیں۔ مریض ایمرجنسی وارڈ کے باہر ایمبولینسز میں گھنٹوں اسٹریچر کا انتظار کرنے پر مجبور۔ جناح اسپتال کراچی کی لیبارٹری کے ویٹنگ ایریا میں کافی عرصے سے پنکھے بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ سٹی 21 بنا شہریوں کی آواز، خبر نشر ہونے کے بعد پنکھوں کی مرمت کر دی۔ تفصیلات ابراہیم رند کی اس رپورٹ میں۔ کراچی مشکلات کا شکار، اسپتال میں ابتدائی سہولت، اسٹریچرز کی قلت۔ سول اسپتال میں آنے والے مریضوں کو اسٹریچر کی عدم دستیابی سے شدید مشکلات کا سامنا۔ مختلف حادثات میں زخمی، ہڈیاں ٹوٹنے کی وجہ سے اسپتال آنے والے کئی گھنٹے شدید گرمی میں اسٹریچر کے منتظر رہنے لگے۔ مریضوں کے تیمارداروں کا کہنا تھا کہ گھنٹوں اسٹریچرز نہیں ملتے، کس سے فریاد کریں۔ زیادہ بیمار ہیں اور 1 گھنٹے سے ہم ویٹ کر رہے ہیں، اسٹریچر مل رہا ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اسٹریچر کے لیے گھوم رہے، اسٹریچر ہی نہیں مل رہے، یہاں پہ کبھی وہاں خوار ہو رہے، کبھی یہاں خوار ہو رہے، کوئی دیکھتے نہیں ہے۔ 2 گھنٹے ہو گئے جب سے پریشان ہے، ابھی اسٹیشن نہیں ملا ہے، پریشانی بہت ہے۔ جناح اسپتال کے ویٹنگ ایریا کے پنکھوں کا بھی تھا برا حال۔ ایسے میں سٹی 21 بنا شہریوں کی آواز۔ سٹی 21 کی خبر پر ایکشن۔ جناح اسپتال کراچی میں کافی عرصہ سے پنکھے بند ہونے کی خبر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ گئی، پنکھوں کی مرمت کروا دی گئی۔ کراچی میں شدید گرمی کے باعث آنکھوں کے امراض میں اضافہ، بچے ہوں یا بڑے سبھی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ مختلف اسپتالوں میں روزانہ 200 سے زائد مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹرز نے شہریوں کو اس موسم میں احتیاط کا مشورہ دے دیا۔
गर्मी की शिद्दत, आंखों के अमराज बढ़ने लगे। शहर कायद में शदीद गर्मी का राज, क्लिनिकों और अस्पतालों में आंखों के अमराज में मुब्तला मरीजों की आमद शुरू। मुख्तलिफ अस्पतालों में रोजाना 200 से जायद मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टरों ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। डायरेक्टर आई बैंक अस्पताल डॉक्टर काजी वासिक कहते हैं कि शहरी गर्म मौसम में गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना हो तो धूप से बचाव के मियारी चश्मे लगाएं। एक अंदाजे के मुताबिक इस गर्मी में आंखों के अमराज में 20 से 30% इजाफा हुआ है। आंखों में जलन या सूजिश की सूरत में फौरी माहिर अमराज चश्म से राब्ता करें। सूरज की तेज़ शुआओं की वजह से जो आँखों को डैमेज होना होता है, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा उसको आँखों को रगड़ते हैं, पसीने को साफ़ करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आँखों में सोजिश होती है। तो बचाओ इसका, जैसे और आप एहतियातें करते हैं कि आप गर्मी में, तेज़ धूप में कोशिश करें कि कम से कम बाहर निकलें। अमराज चश्म के माहिरीन का कहना है कि गर्म मौसम में आंखों को अमराज से बचाने के लिए एहतियात ही सबसे अहम उसूल है। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटों के लिए गैस की फराहमी बंद रहेगी। स्विस सदरन का अजीमपुरा से जाम सादी तक मरम्मती काम के बायस गैस फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान। 9 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करके सिस्टम से मिलाया जाएगा। मंसूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, महमूदाबाद और DHA में कल सुबह 8 से रात 8 बजे तक गैस बंद रहेगी। आजम बस्ती, कयूमाबाद, DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन, फेज़ 4, फेज़ 5 एक्सटेंशन, फेज़ 7 एक्सटेंशन में भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सुबह भर के CNG स्टेशन को भी 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी बंद रहेगी। आज और कल शहर के 3 बड़े हाइड्रेंट्स बंद। मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान, शहरी प्यास से बिलबिला उठे। नीपा, सखी हसन और सफूरा हाइड्रेंट्स 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। ऑनलाइन टैंकर सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। काउंसलर UC आर्ट मोहम्मद अरफान का वाटर कॉरपोरेशन और टाउन इंतजामिया की जानिब से इतला न दिए जाने का शिकवा। इलाका मकीन RO प्लांट से पानी खरीदने पर मजबूर। तफसीलात फाराम खान की रिपोर्ट में। वाटर हाइड्रेंट्स की बंदिश शहरियों के लिए इम्तिहान साबित। RO प्लांट की चांदी हो गई। वाटर कॉरपोरेशन का बड़ा फैसला, 48 इंच की लाइन की मरम्मत का काम शुरू। कराची के 3 बड़े वाटर हाइड्रेंट्स नीपा, सखी हसन और सफूरा को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। सफूरा टाउन के हाइड्रेंट की बंदिश से इलाका मकीन परेशान। RO प्लांट्स पर लंबी कतारें लग गयी। सफूरा टाउन की UC आर्ट के काउंसलर मोहम्मद इरफान कहते हैं, लाइन की मरम्मत और हाइड्रेंट की बंदिश की इत्तला नहीं दी गई। सोशल मीडिया से मालूम हुआ लाइन की मरम्मत का काम हो रहा है। 14 महीने हो गए हमारे इलेक्शन को ना, तो कहते हैं कि आप एक इजलास रखें ताकि हम सारे काउंसलरों को पहचाने, ताकि हमारे नज़र में, ताकि आपकी कंप्लेन। एक टाउन चेयरमैन को ये पता नहीं है और उनके कि कौन कौन से काउंसलर कहाँ के बैठते हैं और उनको क्या हिदायत देनी है। अभी तक तो हमें कोई हिदायत ही नहीं दी गई टाउन की तरफ से कि आपने जाके जो है ना ये लोगों को बताने के उस रात को जैसे हमें पता चला, हमने व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए फ़ौरन ये मैसेज चलाएं जितना हमसे हो सका। वाटर हाइड्रेंट्स की बंदिश पर इलाका मकीनों का कहना है कि अब पानी खरीदने के लिए भी सख्त मुश्किल का सामना है। परेशान हाल हैं, ये बच्चे पढ़ने नहीं गए हैं और बड़े जो है मजदूरी करने नहीं गए हैं, पानी के पीछे लगे हुए हैं। आज रात से जो है ना पानी नहीं आ रहा। बिजली से ना होने से फिर भी गुजारा कर लेते हैं, धूप में साया पकड़ के बैठ जाते हैं। पानी के बगैर गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है और बगैर इतला कि पानी बंद किया हुआ है। इस वक्त गर्मी में छोटे बच्चे कहाँ से दूर दूर से भर के आ रहे हैं, लेकिन जो हार्डरन है, जो माफिया, वो उनसे फ़ोन करो तो वो 5-5, 10-10 हज़ार का टैंकर देते हैं। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक लाइन की मरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है, जिसे जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन शकील के साथ फारहान खान, सिटी 21। शहर कायद में ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रेन इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया। अमला 24 घंटों के लिए आवाम की सहूलियत के लिए सेंटर पर मौजूद होगा। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 570 इमारतें महफूज नहीं हैं। मुमकिन मानसून बारिशों के पेश नज़र सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर पेश की कंटीजेंसी प्लान तैयार कर लिया है। और कमिश्नर कराची कप गधा गाड़ी रेस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। रेस इतवार की सुबह 8 बजे शुरू होगी, जिसमें 50 गधा गाड़ियां हिस्सा लेंगी। तफसीलात मोहम्मद हमाद और काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। गर्मियों के फ़रोग के लिए कमिश्नर कराची हसन नकवी पेश कल गधा गाड़ी रेस मुनक्किद होगी। ऑर्गेनाइजर कलीम अवान के मुताबिक कमिश्नर कराची कप गधा गाड़ी रेस में 50 गधा गाड़ियाँ हिस्सा लेंगी।
एडिशनल कमिश्नर कराची 1 सैयद गुलाम मेहदी बोले, इवेंट की भरपूर तैयारी है, स्टेक होल्डर से मुशावरत हो चुकी है, ट्रैफिक के लिए प्लान भी मुरतब दे दिया गया है। हमारी भरपूर तैयारी है और हमारी गेम्स टोटल 8 हैं। इसमें हमारी जो स्टार्ट है संडे से हो रही थी 23 जून और 30 जून तक हमारी गेम्स चलेंगी। इसमें गदागादी डोंकी कार्ट रेस है, आखिरी हमारी होगी साइकिल रेस, उसमें बास्केटबॉल, शूटिंग बॉल और मज़ीद गेम्स भी शामिल हैं। तो हमारे ओवरऑल कोऑर्डिनेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स हो चुकी है। डोंकी कार्ट रेस के लिए DIG ट्रैफिक पुलिस से मेरी पर्सनली मीटिंग हो चुकी है, लेटर्स भी हम लिख चुके हैं और उन्होंने भी हमें इंश्योर कराया कि इंशाल्लाह सारी जो रूट होगा डोंकी कार्ट रेस का और साइकिल रेस का वो क्लियर होगा। एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जुनूबी झंडा लहराकर रेस का इफ्तिताह करेंगे। रेस बरास्ता MT खान रोड सुल्तानाबाद से होती हुई कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर होगी। कमिश्नर कराची और मेयर मुर्तज़ा वाहब का कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। सिंध असेंबली में बजट पर बहस का तीसरा रोज पीपल्स पार्टी रुकन हिना दस्तगीर ने कहा, पीपल्स पार्टी काम करना जानती है और काम करना चाहती भी है। महमूद आलम जामोद की सिंध असेंबली में गुजारिशात, बोले लेबर कार्ड में माहीगीरों को शामिल किया जाए, मैनेजर हाउसिंग स्कीम के तहत घर बना कर दिए जाएं। सिटी 21 की जानिब से मसले की निशानदही के बाद मैंग्रोव्स की सिंध असेंबली में गूंज। तफसीलात जान लेते हैं आजिज जमाली की इस रिपोर्ट में। असेंबली में बजट पर बहस का तीसरा रोज PTI छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले एजाज खान की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नारेबाजी और मुदाखलत। पार्टी रुकन हिना दस्तगीर ने कहा, पीपल्स पार्टी काम करना जानती है और काम करना चाहती है, तनकीद करने से किसी को नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम करण चाहे थी ऐं कम करण जाने थी, इन ही करे उन एडे खुश असलूबी सा पीपल्स पार्टी के MPA महमूद आलम जामूद ने कहा कि लेबर कार्ड में माहीगीरों को शामिल किया जाए, गरीब माहीगीरों को बेनजीर हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाकर दिए जाएं। सिटी 21 की जानिब से मैंग्रोव्स के मसले की निशानदही के बाद मैंग्रोव्स की सिंध असेंबली में गूंज। ये मेहनत कश लोग, ये माहीगीर का हक है कि सबसे पहले ये लेबर कार्ड उनको दिया जाए। आगा सिराज दुरानी का डिप्टी स्पीकर से दिलचस्प मुकालमा। ऐवान में क्या कहे, सिराज दुरानी ने साबिक रुकन मोहन लाल कोहिस्तानी को शाहरुख खान करार दे दिया। शाहरुख खान बैठे हुए हैं, लेट्स वेलकम हिम। हाउस ट्रेडिशन ये होती है कि व्हेनेवर वी हैव एक्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उसको वेलकम देना चाहिए ताकि हाउस को भी पता चले और उसको भी पता चले कि उसकी कितनी रिस्पेक्ट है। पीपल्स पार्टी के कराची से मुंतखब साजिद झोकियो, राजा रज़ाक, सलीम बलोच, यूसुफ बलोच, अली अहमद, महमूद आलम जामूद, सादिया जावेद और एजाज खान के कराची के मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने पर जोर दिया। हमारी यहाँ पर कराची की 700 साल की तारीख है। हमारी यहाँ पर हम कोई कल के यहाँ से कोई बिछड़ कर वहाँ से नहीं आए। हमें वो न सिखाया जाए कि कराची क्या, इसमें तो हम आवाज उठा के कराची में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और वसीम अख्तर क्या दिया इस शहर को, क्या दिया इस शहर को? एक मंसूबा गिनवा दें, एक मंसूबा गिनवा दें। सिंध असेंबली के इजलास में 3 दिनों के दौरान 84 अरकान बजट पर बहस मुकम्मल कर चुके हैं। स्पीकर उवैस कादिर शाह ने इजलास पीर की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन हैदर अली के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। अपोजिशन अरकान टिकटॉकर्स और जोकर हैं। पीपल्स पार्टी के MPA एजाज खान और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। मैं इस्तीफा देता हूं, ये भी इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है। एजाज खान का PTI अरकान को चैलेंज। सिंध असेंबली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्पीकर साहब, रूलिंग डे अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है इस माहौल को तो उनको बाहर निकालें यहाँ से। मैं किसी भी ऑनरेबल मेंबर को ये नहीं चाहूंगा कि इस हाउस से बाहर जाए। जो इनको खैरात में मिली हैं, इन बेचारों की आवाम के लिए भी मैं समझता हूँ कि ऐवान में दुआ कराई जाए कि बेचारे इनको भुगतेंगे। लीग को बड़ा झटका, लीगी बागी मैदान में आ गए। जुलाई में बाज़ाब्ता तौर पर नई पार्टी के ऐलान करने का फैसला कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी 6 जुलाई को अवाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान करेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने मरीम नवाज को बहन करार दे दिया। कहते हैं पार्टी किसी के इशारे पर नहीं बनाई, नवाज शरीफ से ज़ाती नहीं सियासी और नजरियाती नाराजगी है।
लीग की नाराज रहनुमा मैदान में आ गए। कई माह से जारी अफवाहें हकीकत का रूप धार गई। पाकिस्तानी सियासत में एक और पार्टी का इजाफा। लीगी बागियों ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। साबिक वजीर आज़म शाहिद खान अब्बासी 6 जुलाई को अवाम पाकिस्तान के नाम से पार्टी का ऐलान करेंगे। नई पार्टी के क़याम का ऐलान इस्लामाबाद में किया जाएगा। इस्लामाबाद में शाहिद खान अब्बासी की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। सिटी 21 से गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल ने साफ कह दिया कि नवाज शरीफ से नाराजगी नहीं, शहबाज शरीफ से इख्तलाफात नहीं, नवाज शरीफ से जाती नहीं, सियासी नजरियाती नाराजगी है। मरियम नवाज से नाराजगी नहीं, वो मेरी बहन है। 6 जुलाई को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में शाहिद खान अब्बासी साहब जो हमारी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके कन्वीनर हैं अभी, वो पार्टी का लॉन्च करेंगे हम सब के साथ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान के साथ। और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करेंगे गिलगित से लेके कराची तक हर जगह पे। मैं समझता हूँ कि इसमें आधी बात दुरुस्त है कि मियाँ नवाज शरीफ से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, आधी बात गलत है। मियाँ शहबाज साहब शरीफ से भी कोई बुरे ताल्लुकात नहीं है, उनसे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे भाई हैं दोनों। मिफ्ता इस्माइल ने चौधरी निसार और जुबैर उमर को पार्टी में शामिल होने की दावत दे दी। मिफ्ता इस्माइल ने वाज़ेह किया कि पार्टी किसी के इशारे पर नहीं बनाई। रिटायर्ड जजेस या जनरल्स को पार्टी में नहीं लिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में कहा, इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन अलॉट करेगा, शलजम या किसी और निशान से नहीं, कारकर्दगी पर जीतेंगे। मिफ्ता इस्माइल की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। नाज़रीन, शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का आसाब जारी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 के मकीनों का सबर जवाब दे क्या? फरहान खान की रिपोर्ट देखें। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज की ठान ली। मकीन कहते हैं लोड शेडिंग का सिलसिला ना रोका गया तो एहतजाज किया जाएगा। अब भाई रोड एहतजाज करेंगे, अपने खुदकशी करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, जितना हो सका, नहीं तो हम अपने आप को खत्म कर देंगे। के इलेक्ट्रिक के दफ्तरों में जाकर के उनसे अपना हक लेंगे। अगर ऐसा हमें मजबूर किया गया, ऐसी गर्मी में जो है ना 10-10, 12-12 घंटे आवाम की कुव्वत बर्दाश्त से अब ज़्यादा हो चुका है। यही है कि आवाम एहतजाज करेगी, हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम यही अभी सोच रहे हैं, और तो हमारे पास कोई पुरसान हाल नहीं है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि के इलेक्ट्रिक होश के नाखून ले और बिजली की मुस्तकिल फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन शकील के साथ फरहान खान, सिटी 21। जमात इस्लामी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार, कल मुल्कीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। दफा 144 की कोई फिक्र नहीं, महंगाई ने अखराजात पूरे करना मुश्किल बना दिया। शहरी इदारों को यकजा करने से मसाइल हल नहीं होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कि KMC के जिम्मे 6.5 अरब रुपए के कर्जे हैं। एरिया के कर्जों की मालियत कई अरब है। बदकिस्मती से किसी मेयर ने रेवेन्यू कलेक्शन निज़ाम को बेहतर बनाने पर तवज्जो ही नहीं दी। दस्तावेजात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का केस, सारंबरनी की अदालत में पेशी। FIA के 3 गवाहान के 164 के बयान मुकदमे का हिस्सा बना दिए गए। तफ्तीशी अफसर से तफ्तीश मुकम्मल करके चालान तलब कर रखा है। कुछ बुरा किया था, न किया है, न कभी जिंदगी में करने का इरादा रखता हूँ। मैं तो अपने बाल काले नहीं करता, मैं काले काम कैसे कर सकता हूँ। मुझे अफसोस सिर्फ वो जो थर्ड क्लास किस्म के यूट्यूबर्स हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो अपनी दुकानें चमकाने के लिए, मुझे लगता है कि अल्लाह मुझे माफ़ करे कि वो अपने उन्हें एहसास ही नहीं है। हमें नौकरियां ढूंढनी नहीं बल्कि पैदा करनी है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल बोले, पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही डिजिटलाइज करेंगे। मुल्क में जदीद तालीम पर तवज्जो मरकूज है, नौजवानों को कौम का सरमाया बनाएंगे। तफसीलात जुबैर राशिद की रिपोर्ट में। वफाकी वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पहुँचे हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर, तो आला हुक्काम ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर को खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ये ब्रेन ट्रेन हो रहा है। तलबा तंजीमें नई क़यादत पैदा करने का जरिया है। मैं ये समझता हूँ कि जदीद दुनिया के जो तकाज़े हैं वो उसको सामने रखकर और उनकी मदद लेकर अगर हम 1-1 साल की भी कोशिश करा दें तो पाकिस्तानी नौजवान जाकर उन डेवलप कंट्रीज़ को देख लेंगे, उनके निज़ाम तालीम को देख लेंगे, उनके तरीक़ों को देख लेंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि आने वाले दौर में दुनिया के बहरान को पाकिस्तान ही कम कर सकता है। नए दौर में तालीम की सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जब तक पूरा पाकिस्तान बराबर का वफादार और बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुँच के नहीं आएगा। पाकिस्तान में ऐसे तमाम चीज़ें जिससे कि तब्दीली आने का कोई इम्कान बनता हो, उसको तब्दील कर दिया जाता है।
میں میڈیکل کالج میں جب آیا تھا تو پاکستان کا آخری طلبہ الیکشن میں نے دیکھا تھا، اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے دفتر آمد پر وفاقی وزیر کو اجرک اور سندھی ٹوپی پیش کی گئی۔ کیمرامین فرحان خان کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جامشورو کا MD کیٹ ٹیسٹ کی ذمہ داری لینے سے انکار۔ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو ٹیسٹ کی ذمہ داری تفویض کر دی گئی۔ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو تیسری مرتبہ MD کیٹ ٹیسٹ کی ذمہ داری دے دی گئی۔ اور کاروباری ہفتے کے اختتام پر کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر میں ملا جلا رجحان رہا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ ہفتے کے اختتام پر کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر میں ملا جلا رجحان۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں استحکام دیکھنے میں آیا۔ انٹر بینک میں ہفتے کے دوران امریکی ڈالر 278 روپے 51 پیسے پر ہی برقرار رہا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 17 پیسے مہنگا ہوا۔ ایک ہفتے میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 280.20 روپے سے بڑھ کر 280.37 روپے کا ہو گیا۔ ایک ہفتے میں یورو 1.70 روپے کا مہنگا ہو کر 257.79 روپے کا ہو گیا۔ برطانوی پاؤنڈ 83 پیسے اضافے سے 352 روپے کا ہو گیا۔ اماراتی درہم 28 پیسے مہنگا ہو کر 75.84 روپے کا ہو گیا۔ سعودی ریال 31 پیسے اضافے سے 73.80 روپے کا ہو گیا۔ ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 3 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 9.10 ارب ڈالر سے بڑھ کر 9.13 ارب ڈالر ہو گئے۔ کمرشل بینکوں کے ذخائر 10 لاکھ ڈالر کمی سے 5.28 ارب ڈالر رہ گئے۔